تو پیارے آقا کی ولادت سے 55 دن پہلے ایسے کمال کا واقعہ ہوا کہ جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پیارے آقا کی ولادت سے 55 دن پہلے کیا واقعہ ہوا؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہا، اس نے پلان کیا کہ لوگ دور دراز سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، تو میں کیوں نہ معاذ اللہ کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دوں اور اس کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جاؤں اور وہاں پر ایک کعبہ تعمیر کر دوں اور سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ تو اس نے کعبے پہ اٹیک کرنے کا پلان کیا۔ اب آپ تو جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لڑائی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوا کرتی تھی، تو اس بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ اب ہاتھیوں کا مقابلہ اونٹوں والوں سے اور گھوڑوں والوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مکے کا گھیراؤ کیا اور مکے والوں کے جو جانور تھے، ان کا جو مال مویشی تھا، بھیڑ بکریاں تھی، ان کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اب مکے والوں کا روزگار بھی ڈسٹرب ہوا۔ تو حضور کے مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے آپ کے چہرے پر بڑا نور عطا فرمایا تھا۔ آپ کے چہرے پر نور نبوت چمکتا تھا۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ ابرہا کے پاس چلے گئے۔ وہ متکبر بادشاہ کرو فر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے مکے کو ڈھانا ہے۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو وہ سمجھا ہوگا کہ یہ نیگوسیشن کریں گے، منت سماجت کریں گے۔ باہر سے پیغام بھجوایا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے چہرے پر بڑا نور عطا فرمایا تھا، اس پر روب دبدبہ طاری ہوا، ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہوا، اپنے برابر میں بٹھایا، عرض کیا حضرت کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے جانور پکڑ لیے ہیں، ہمارے جانور چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ آپ اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ کعبے کی بات کریں گے۔ آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ تو اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو تو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا نا، وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ بڑے کمال کا جواب دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، اور کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہا سمجھ نہ پایا، اسے سمجھ نہ آئی، اس نے سمجھا کہ شاید کنفیوز ہو گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو جانور چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اپنے جانور لو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ سارے مکے والے پہاڑوں پر چلے گئے۔ اب ذرا آپ امیجنیشن کریں کہ کعبہ ہے، صرف کعبہ ہے، ابھی حرم نہیں بنا۔ اگر آج کوئی مکہ گیا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کے ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اب تو بہت سارے پہاڑ کاٹ دیے گئے ہیں، ہوٹلز بنا دیے گئے ہیں، لیکن ذرا پیچھے چلے جائیں آج سے 1400 سال پہلے کہ صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کعبہ تھا، اور ہاتھیوں کا لشکر ہے، اور اس کے رکاوٹ کے لیے شہر میں کوئی موجود نہیں، فقط حضرت عبد المطلب ہیں۔ آپ بھی
काबे पर चले जाते हैं और काबे की दीवार को पकड़कर दिक्कत आमेज दुआएं करते हैं कि ए रब्बे करीम, ए काबे के रब, आज तूने अपनी कुदरत का जलवा दिखाना है, आज तूने इन जालिमों को बताना है कि तू और तेरे मानने वाले हक पर हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिक्कत अमेज दुआएं करते हैं और दुआएं करने के बाद फिर आप भी पहाड़ों पर चले जाते हैं। अब जरा सोचिए कि सिर्फ काबा है और हाथियों का लश्कर है, और ये कैसा हमला था कि सिर्फ काबा है और हाथियों का लश्कर है और शहर में हिफाजत के लिए कोई और मौजूद नहीं है। अब अबरहा ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि हाथी चलें और माअज़ल्लाह काबे को तहस नहस करके रख दें। अब पूरी दुनिया ने एक अजब नज़ारा देखा। अल्लाह ने अपनी कुदरत का अजब नज़ारा दिखाया कि अबरहा जिस हाथी पर बैठा है, जब उसका रुख काबे की तरफ करते हैं तो वो चलता नहीं, हरकत नहीं करता, लेकिन जब उसका एंगल चेंज करते हैं, उसका रुख बदलते हैं तो फिर वो चलता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, दुनिया में दस्तूर है कि आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है, नेवी का मुकाबला नेवी से होता है, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं। अब हाथियों का लश्कर है और अल्लाह करीम ने उसके मुकाबले के लिए क्या भेजा है? अबाबील, मुट्ठी में आने वाला परिंदा, चील जितना परिंदा भी नहीं भेजा। अरे हाथियों का लश्कर है और रब्बे करीम भेज रहा है उसके लिए अबाबील, वो परिंदा जो मुट्ठी में आ जाता है, जिसका अपना वजन चंद ग्राम है। अब आप मुझे बताइए कि उस परिंदे की चोंच में, उसके पंजों में कितना बड़ा पत्थर आता होगा। आज लोग कहते हैं जी फला मुल्क ने, फला सुपर पावर ने गाइडेड मिसाइल बना दिए हैं, सिर्फ टारगेट सेट करो वो वहीं पे जाके हिट करता है। आओ आज मैं तुम्हें 1400 साल पीछे ले जाऊं। रब्बे करीम ने उन अबाबील के पंजों में कैसे गाइडेड मिसाइल फिट किए थे। हर पत्थर पर हाथी सवार का नाम दर्ज है, हर कंकर पर हाथी सवार का नाम लिखा हुआ है। और जब अबाबील का लश्कर आता है तो फिर क्या होता है? आपने सूरह फील कई मर्तबा पढ़ी होगी, इमाम साहब ने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, लेकिन आइए आज कुरान करीम के इस सूरे को, इस वाक़या के तनाजुर में सुनिएगा। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? अब जरा अपने ज़हनों को हाजिर रखिएगा कि ये अस्हाबे फील का वाक़या कब पेश आया। प्यारे आका की विलादत से 55 दिन पहले। प्यारे आका की विलादत नहीं हुई, आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, और रब्बे करीम कुरान करीम में फरमा रहा है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? तो इट मीन्स, अब बताया उसे जाता है जो कहीं मौजूद हो, कहीं देख रहा हो। प्यारे आका फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, और मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया। प्यारे आका ने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील, तूने हर नबी की बारगाह में हाजिरी दी है, तू हर नबी के दरबार में हाजिर हुआ है, क्या किसी को तूने मेरे जैसा भी पाया है? तो प्यारे आका जिब्रील अमीन से अपने बारे में पूछते हैं, तो जिब्रील अमीन जवाब देते हैं
बल्कि आइए जिब्रील का जवाब सुनने से पहले आला हज़रत की बात सुनते हैं। ताजदार बरेली फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, यक ने तुझे यक बनाया। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका मैंने पूरी कायनात में आप जैसा नहीं देखा। तो जिब्रील अमीन हर नबी की बारगाह में हाजिर हुए हैं, किसी की बारगाह में 5 बार, किसी की बारगाह में 10 बार और किसी नबी की बारगाह में 100 बार। लेकिन आइए आज आपको मैं बताता हूं कि जिब्रील अमीन वो मेरे नबी की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए हैं और ये सिलसिला कितने अरसे तक चलता रहा है। तो जिब्रील अमीन प्यारे आका की बारगाह में 24,000 मरतबा हाजिर हुए हैं और ये सिलसिला 23 साल तक चलता रहा है। 40 साल की उम्र में पहली वही का नज़ुल होता है और 63 बरस की उम्र में प्यारे आका का विसाल होता है। तो इन 23 सालों में जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा प्यारे आका की बारगाह में आए हैं। 24,000 मरतबा। क्यों? सिदरतुल मुंतहा से 7वें आसमान से भी ऊपर रोज़ आना है और दिन में कई बार आना है। मौलाना हसन रज़ा खां साहब आप इस राज से पर्दा उठाते हैं, फरमाते हैं कि इतनी बार क्यों आए हैं। आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा जाना देख लिया था तो उनकी याद सताती थी, अब उनके बग़ैर रह नहीं सकते थे। तो बहरहाल इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, प्यारे आका की विलादत से 55 दिन पहले ऐसे कमाल का वाक़या हुआ, ऐसे कमाल की अनाउंसमेंट हुई कि जिसने पूरी दुनिया का रंग ही बदल डाला। अल्लाह करीम ने फरमाया अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कि अबाबील के लश्कर भेजे और उन्होंने क्या किया, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कंकरों की और पत्थरों की बारिश की और रिजल्ट क्या आया, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल, कि उन्हें ऐसा बना दिया जैसा चबाया हुआ भुस पर खच्चे उड़ा दिए। और जो काम बड़े बड़े मिसाइल नहीं कर सकते थे उन पत्थरों और कंकरों ने वो कर दिखाया। और हाथी सवार और हाथियों का नामो निशान तक मिटा के रख दिया। तो पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला है सुबह शबे विलादत।